Sir? Sir, you're muted. I'm sorry, beta. So, just quick review. What we have done. I think there was some issue with the recording. So yes, these are the reaction of chlorine with और period 3 element. ठीक है? As I said के ये जो star मैंने बनाया, it means के sulfur do not reaction is not required here. लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. And then the reaction of period 3 element with the chloride. Period 3 chloride with water. ठीक है? So magnesium and sodium chloride they dissolve in water in a similar way. जैसे normal ionic compound ionize होते हैं forming sodium chloride and a positive and Cl negative Mg2 plus and Cl negative. And the pH of the solution is almost neutral, 7 and 6.5. AlCl3 is basically reacts with water in a way that it forms an acidic solution of pH 3. ठीक है? As you can see, aluminum chloride water में dissolve हुआ and dissolve होने के बाद it form a complex ion of aluminum in which aluminum is attached to surrounded by 6 water molecules, and these water molecules are called ligand molecule. ठीक है? Clear? And the charge is highly positive charge which is 3 plus, due to which this molecule is unstable. ठीक है ना? देखिए, any positive ion और नेगेटिव आयन, इफ इट इज मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को कम करता है. अब क्या होगा, दिस एल्युमिनियम बेसिकली अपने चार्ज को कम करेगा. कैसे कम करेगा कि आउट ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल 5 बाकी बचेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है? अब ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा, 2 प्लस. यू कैन सी that the overall charge get decreased. Overall charge क्या हो गया, कम हो गया. It become less positive. Less positive होने का मतलब it become more stable. ठीक है? It become more stable. Clear? And because it release a H positive ion, because of this H positive ion, the solution is acidic. और उसकी pH क्या होती है जनाब? pH होती है 3.0. ठीक है? The solution is acidic and the pH is 3.0. So keep in mind that aluminum reacts with water, forming Al3 plus complex sign. Sorry, Al3 plus complex sign, and this complex sign further dissociate in water, releasing one H positive ion, और charge 3 plus से 2 plus में कम होके it become more stable. Now this is a very stable ion. That's why whenever you dissolve aluminum chloride in water, you always get a solution of pH 3. ठीक है? Clear? ये वाला key point थोड़ा सा याद रखिएगा. Sometime some of the AS student find it difficult, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. बस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, OH नेगेटिव रिलीज, H पॉजिटिव रिलीज किया, तो H पॉजिटिव रिलीज होने की वजह से 3 प्लस से चार्ज कितना हो गया, कम होके 2 प्लस हो गया. एनी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो जितना ज्यादा पॉजिटिव या जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल के लिए केमिस्ट्री में एक और टर्म यूज होती है, वी यूज्ड टू से दैट इट इज मोर रिएक्टिव. देखिए ना, केमिस्ट्री में अनस्टेबल, सोडियम इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज वेरी रिएक्टिव. एंड ए पॉजिटिव आयन इज स्टेबल, ऑक्टेट इज कंप्लीट, दैट्स व्हाई इट इज अनरिएक्टिव. तो अनरिएक्टिव का मतलब स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव. ठीक है? तो ये इक्वेशन एक दफा याद रखिएगा. दे नॉर्मली आस्किंग दिस इक्वेशन इन एग्जाम बहुत ज्यादा पूछी जाती है. एल्युमिनियम के बाद वी हैव SiCl4. yes, when you dissolve SiCl4 in water, the pH 2 का solution आपके पास बनेगा, solution of pH 2.0, and it is also an acidic solution. ठीक है? highly acidic solution. And the equation is quite simple. SiCl4 plus H2O forming SiO2, solid. SiO2 is insoluble in water, that's why we write that this is solid, plus HCl. ठीक है? Equation को balance करने के लिए I think I place 2 here. This is liquid, this is liquid, and this is solid, and this is aqueous. And as you can see, a strong acid is formed
जिसकी वजह से द सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 2.0. ठीक है, 2 pH होती है. Clear? A very simple equation, SiCl4 plus H2O forming SiO2 plus HCl. In a similar way, PCl5 or PCl3, whatever it is, जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं. It also dissolve in water. pH solution of pH2 का solution form करेगा. ठीक है, and this is also an acidic solution. This is also an acidic solution. Equation, ट्राई कीजिए PCl3 या PCl5 plus H2O forming H3PO4 plus HCl. Sorry, हाँ, plus H2. ठीक है, it is forming H3PO4 plus HCl. And the pH of the solution is 2 and it is an acidic solution because we have two strong acid. कितने? दो strong acid बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास solution की pH जो है वो 2.0. ठीक है जी, इसकी pH की एक समरी हम अपने पास लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl3, PCl5 दोनों. ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस नहीं की है. यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ 3 लगाना पड़ेगा. अभी भी बैलेंस नहीं है. हाँ, कहाँ पे 3H2 लगेगा. ठीक है, 3H2O से कैसे बैलेंस हो रहा है बेटा? H3PO4 है राइट साइड पे और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो रहा है. देखें, है ना, ना बैलेंस हो तो 7.0, 6.5, अगर आप 7.5 भी लिखेंगे 3.0 और इन सब की पीएच है 2.0. ठीक है, सो दिस इज द पीएच एंड दिस इज द लास्ट ऑफ पीरियोडिसिटी. ठीक है, सो बेसिक थीम क्या थी बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा एम्फेसाइज था इस चैप्टर में. तो ग्राफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड है, रिएक्शन विद क्लोरीन है एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ reaction with chlorine है and the properties of chloride यानी their solubility in water, how they dissolve in water, how they behave in water. ठीक है, anything which is different in this chapter? नहीं, सिर्फ physical properties के अलावा कुछ भी different नहीं है. तो एक दफा जरा हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं इस पूरे चैप्टर का and then we do some question and then move towards the group 2 quickly. सही है? देखो, periodicity का मतलब क्या होता है? Anything, you know, क्या, what is mean by the term periodicity? The study of physical and chemical properties of element across the period, left to right. ठीक है, and what is left to right में problem क्या? Sorry, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि when you move from left to right in any period, you study the properties of metals, metalloid, non-metal and noble gases. सबकी properties आप पढ़ते हैं. And in this chapter we haven't done the period 1 because it only consists of two elements, hydrogen and helium. Period 2 consists of the first member of the group, and the properties of first members of the group like hydrogen, oxygen, nitrogen is different from the other members of the group. और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि they do not have empty orbital. इसकी एक एग्जांपल हमने ली थी, nitrogen and phosphorus belong to the same group of the periodic table. Nitrogen can only make 3 covalent bond with 1 lone pair. Phosphorus can also make 5 covalent bond because it has excited state possible, जो कि हमने bonding में पढ़ा था. So we do period 3 element. और पीरियड 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो डाउन द ग्रुप सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, क्लियर? इन अ सिमिलर वे the first property was the atomic radius. Atomic radius में yes there are different ways of finding out the atomic radius. Method ये है कि we measure the distance between the nuclei of two neighboring atom and we take the half of it. सही है?
सो उसके लिए दो एटम्स का आपस में क्लोजली पैक्ड होना बहुत जरूरी है। और मेटल्स में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, नॉन मेटल्स में ऐसा होता है लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन नोबल गैसेस में एज द एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो हमारे पास मेटालिक रेडियस जो कि मेटल में होता है, इट्स वेरी एक्यूरेट। वी हैव कोवेलेंट रेडियाई व्हिच इज इन अ नॉन मेटल, लेस एक्यूरेट देन मेटालिक रेडियस, बट इट्स वेरी एक्यूरेट। एंड देन नोबल गैसेस में वी हैव अ वैन डर वाल रेडियाई व्हिच इज वेरी लेस एक्यूरेट, क्योंकि एक नोबल गैस समझ लो यहाँ है और एक वॉल के उस कॉर्नर पर है। सो व्हेन वी टेक द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई, तो वो हमारे पास गैप्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सेम शेल, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है एंड द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। तो हमारे पास ये ट्रेंड आता है एंड यू कैन सी इन दिस ट्रेंड मैंने आर्गन को समवेयर ऑन द टॉप बनाया है। नॉर्मली मेरे पास स्पेस कम थी, वरना मैं इसे सोडियम से बहुत ऊपर ड्रॉ करता। ठीक है, एंड ये ऊपर अपनी किसी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं है, ये ऊपर हमारे इनएक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की वजह से है ना। इफ वी मेजर, इफ वी कैन बाय एनी मेथड मेजर द एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गन, अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम मेजर कर सकें तो आर्गन को क्लोरीन से नीचे होना चाहिए, है ना। टेक्निकली दिस इज ऑन द टॉप बिकॉज आर वे और आर मेथड ऑफ मेजरिंग द एटॉमिक रेडियस इज इनएक्यूरेट। ठीक है, आयनिक रेडियस में हमने बहुत क्लियरली ये कंपैरिजन पढ़े थे, तो मैं जरा क्विकली इस पे इसको रिवाइज करवा दूं। मेरी देखिए, आई एम जस्ट ट्राइंग कि हमें मेमोराइज हो जाए चीजें यहीं पे क्लास में ना, ताकि हमारे लिए उसको करना आसान हो जाए। सो इफ यू हैव अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन, कंपैरेटिव इन दोनों का प्रोटॉन नंबर हो, सो द चार्ज, सो द नेगेटिव आयन इज ऑलवेज ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू अ पॉजिटिव आयन। उसका रीजन क्या है? more electron, less proton. In a similar way, if you have three positive ions, जैसे Na plus 1 plus 2 plus 3 है, if you have three positive ions, as the positive charge increases, the radius decreases because you have more protons and less electron. As the negative charge increases, the radius increases. Keeping this one in mind, हम इस atomic ionic radius को दो types में divide करते हैं. One we have the positive ion, Na positive से Si 4 plus तक, ठीक है? So from sodium till silicon, the charge increases, so the radius decreases. In a similar way, phosphorus 3 minus to chlorine 1 minus, again the radius decreases. And this is a trend of ionic radius. All the positive ions have a smaller radius as compared to a negative ion. From sodium positive to Si4 plus, the radius decreases. From P3 minus to Cl1 minus, the radius decreases as well. And then we have the trend of the first ionization energy. We have done this one in atomic structure. Left to right, the ionization energy increases. As the electron is present in the same outermost shell, the nuclear distance and the shielding effect remains nearly constant, but the nuclear charge increases. So the ion. And we have two exceptional cases, or two cases that deviate from the behavior: magnesium and aluminum, phosphorus and sulfur. Magnesium और aluminum में difference of subshell होता है. The outermost electron of aluminum is present in a p subshell, easier to remove due to a slightly larger nuclear distance. The outermost electron of sulfur is a paired electron. एक reason ये है, easier to remove है, इसलिए sulfur की ionization energy कम है. दूसरा reason ये है कि the phosphorus का outermost shell is half filled. Half filled subshell is more stable. ठीक है, क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर का. एंड देन वी हैव अ मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में याद रखिएगा, फ्रॉम सोडियम टिल एल्युमिनियम वी हैव मेटल्स. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज यू हैव मोर नंबर ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन. इन अ सिमिलर वे, सिलिकॉन इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, इट शुड हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. In non-metal like phosphorus, sulfur, and chlorine, the melting point depends on the intermolecular force, and the intermolecular force is the dispersion or the van der Waals force. और van der Waals force depend करती है mr पे. अब phosphorus, sulfur और chlorine में phosphorus exists as P4, sulfur as S8 and chlorine as Cl2. Highest mr किसका है? S8 का. इसका boiling point highest होगा. Lowest mr किसका है? chlorine का. इसकी van der Waals force सबसे कम और इसका boiling point हमेशा और melting point lowest होगा. तो yes, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं. This is the trend and this is the graph. You can see from sodium till aluminum, the melting point increases. Highest is silicon because of giant molecular structure, and then between phosphorus, sulfur. यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, while you draw it in exam, if you have this graph in exam, और clearly ये graph बहुत ज्यादा पूछा जाता है, make sure कि जो sulfur है, this sulfur is still below sodium. आपने जो ड्रॉ किया है उसे बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे.
समटाइम आप जब आप इस पीक को ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये सोडियम से ऊपर आ जाता है, सोडियम के बराबर आ जाता है। इट शुड बी वेल बिलो सोडियम। S8 सोडियम से नीचे होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए S8 का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, क्लियर। एंड देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी हमने आज ही डिस्कस किया, एंड देन देयर रिएक्शंस विद दिस एंड दिस। लेट्स सी कि थोड़े से कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। ओके, ionic radius, which graph? Good. The chloride of अच्छा देखें, जो हमने पढ़ा है ना P2 में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। दे आस्क यू टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑब्जर्वेशन, और दे आस्क यू टू ड्रॉ द ग्राफ। अभी हम देख भी लेंगे। P1 में थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो चेक होते हैं। ओके, इट्स इज एन एलिमेंट। क्वेश्चन 2 देखिए, चलें पहले वन से ही शुरू कर देने। विच स्पेशी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला हैज अ लार्जेस्ट रेडियस। देखें, there is a comparison between positive, neutral and negative. So all negative must be larger in radius as compared to neutral and positive. And within negative, the one with the highest negative charge, so P3 minus. Easy question. In a similar way, an element of the third period from sodium to sulfur is heated with chlorine. Talking about the chloride of period 3. अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले. The product is purified and then added to water, and the resulting solution is neutral. There is only one chloride. Yes, only one chloride. अच्छा देखिए, चूंकि अभी पढ़ा है बेटा, तो आप देख रहे हैं कि you can easily pick the MCQ. ये क्लियर इंडिकेशन है कि टू डू periodicity अच्छे तरीके से, there is only one condition, good revision, है ना। कोई टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं कि केसेस चेंज होंगे या कुछ होगा। इट्स अ मेमोराइजिंग स्टफ, जस्ट मेमोराइज एंड जस्ट solve the question. Question number 2. The chloride of element Q is hydrolyzed by water to form an acidic solution, and its oxide react with acid to form a salt. एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब इट मस्ट बी एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, मैग्नीशियम नहीं हो सकता। एग्रीड। उसने कहा, और उसका ऑक्साइड जो है, इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। विच वन ऑफ दीज फॉर्म एन ऑक्साइड फॉर्मिंग अ सॉल्ट? देखिए, ये तो नहीं हो सकता, इसको अभी हम हटा देते, ठीक है ना। क्लियर। फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, एंड इट्स ऑक्साइड। एसिडिक सॉल्यूशन और ऑक्साइड के साथ आई थिंक, क्योंकि SiO2 इज अ सॉलिड, है ना, तो सॉलिड का मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन, प्योरली एसिडिक सॉल्यूशन इज इन ऑप्शन डी, H3PO4। SiO2 सॉलिड होता है ना, वरना SiO2 भी एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन SiO2 इज बेसिकली अ सॉलिड। सो टिपिकली आपके पास फॉस्फोरस जो है, वो वाटर के साथ, उसका क्लोराइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है, फॉर्मिंग H3PO4 and HCl, एंड दिस इज अ प्योरली एसिडिक सॉल्यूशन। और SO2 कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल। वी डन विद दिस वन। इसकी तरफ आते हैं। अ मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड्स, two element of the third period is dissolved in water, the solution is तकरीबन न्यूट्रल। What could be the constituent of the mixture? अच्छा, न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल है। देखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। दे आर नॉट क्लोराइड, दे आर ऑक्साइड, and aluminum oxide is amphoteric, insoluble in water, ठीक है। So if you have two metal oxide dissolved in water, both of them react together, react with water or hydrolyze in water, forming a alkaline solution. Neutral नहीं होगा। Neutral कब होगा? When you take a metal oxide which is forming an alkaline solution and a non-metal oxide which is forming an acidic solution, both make the solution neutral. तो देखिए यहाँ पर, this is insoluble in water, out of question. Both of these form an basic oxide, ये दोनों मिलके तो basic oxide बनाएंगे। अच्छा, SO3PO4 दोनों नॉन मेटल है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बोथ ऑफ दीज फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड बेस, this is a non-metal oxide acid, and the solution is going to be a neutral solution.
ठीक है। क्लोराइड के केस में न्यूट्रल सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड बनाता है, ऑक्साइड के केस में कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बनाता। आइदर इट इज इनसॉल्युबल लाइक Al2O3 और SiO2, और आइदर इट इज एसिडिक और अल्कलाइन, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑक्साइड आपके पास है। ये वही रिएक्शन है जिसमें अभी हमने पढ़ा है। वैसे ये थोड़ा अलग एक चीज से रेलेवेंट भी रखता है। एल्युमिनियम क्लोराइड catalyze certain chemical reaction form of carbocations with chloroalkanes, organic से related reaction है, AlCl4 नेगेटिव फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। AlCl3 is basically एल्युमिनियम AlCl3। यहाँ एक बात मैं क्लियर करता चलूं बेटा, एल्युमिनियम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल? हाँ, पीरियड सॉरी ग्रुप नंबर एल्युमिनियम का 3, so it has 3 electron. If I'm talking about AlCl3, can I say that this is AlCl3 beta? है ना? Anything unusual in AlCl3? कोई चीज unusual आपको नजर आ रही है इसमें? Anything unusual? I can see that after making AlCl3, aluminum still has 6 electron in the outermost shell. है ना? It means that there is a deficiency of 2 electron. That's why aluminum make a dimer in bonding, coordinate covalent bonding करता है और Al2Cl6 फॉर्म करता है। तो अब इस बात को जहन में रखते हुए आंसर कीजिए। The aluminum atom in Al से has an incomplete octet of electron. देखो क्या किया इसने, AlCl3 ने एक क्लोरीन को ऐड कर लिया, है ना। क्लोरीन को ऐड कर दिया मतलब इट मेकिंग अ फर्दर बॉन्ड विद क्लोरीन। किस प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है? बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। whenever they ask you about AlCl3 के भाई ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है, why it is further reacting, whenever they ask you about BF3 और BH3 और BCl3, boron और एल्युमिनियम मेकिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, whenever they ask you about these two, इनके कोई भी कंपाउंड और ये कहेंगे फर्दर रिएक्ट कर रहा है, जैसे BH3 रिएक्ट कर जाता है NH3 के साथ, इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है। अगर वो पूछे भाई ये दोनों मिक्सअप होके कॉम्प्लेक्स साइन फॉर्म कर रहे हैं, बताइए क्यों, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज द रीजन। एनी पीरियड 3, एनी ग्रुप 3 एलिमेंट मेकिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव अ फर्दर कैपेसिटी ऑफ मेकिंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी उसके पास होती है। इक्वेशन, which of these equation represent the reaction of sulfur dioxide with an excess of aqueous sodium chloride? Sulfur dioxide, SO2. What's the difference between the reaction of SO2 with sodium hydroxide or SO3 with sodium hydroxide? क्या difference है? Difference is that SO2 में Na2SO3 बनता है, not SO4. SO4 कब बनता है बेटा? जब आप SO3 के साथ रिएक्शन करें। There is only one reaction in which you can see SO2 react with sodium hydroxide forming Na2SO3 plus H2O. ये तो possibility नहीं है। This is the possibility when you have sulfur trioxide reacting with sodium hydroxide. Now this one, the species argon, potassium, calcium 2 plus isoelectronic. Isoelectronic is the term, इसने define भी कर दी है। आइसो का मतलब एक जैसा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, स्मॉलेस्ट रेडियस, अगेन द सेम थिंग। पॉजिटिव आयंस, मैंने एक आउटलुक लिया तो आई कैन सी दैट ऑल दीज आयंस आर आइदर द पॉजिटिव और द न्यूट्रल। सो स्मॉलेस्ट होगा द पॉजिटिव आयन विद द मोस्ट पॉजिटिव चार्ज, so can I say that going to be calcium 2 plus, then potassium, and then argon. सही है, C is the right option for this one. 10 तक कर लेना इसको। We done this one. नहीं, ओके, यू हैव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आई थिंक, है ना सबके पास? द रिएक्शन, उसने कहा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड SiO2 are each completely burned in an excess of oxygen, which graph shows the moles of oxygen used in each case? Moles of oxygen used in each case. Okay, sodium, ठीक है, reacts with half moles of oxygen. Magnesium react with 1 mole of oxygen. Aluminum react with 1.5, 3 over 2, 3 over 2 का मतलब 1.5. So कौन सा आंसर ठीक है? देखिए और से, बी सही है? नहीं, हाफ, 1 और 1.5, ये 3 over 2 था ना एल्युमिनियम के केस में। ए सही लग रहा है।
हाफ, 1, 1.5। हाँ, ए सही लग रहा है या बी सही लग रहा है? इतना डिफरेंस तो नहीं है, 0.5 का डिफरेंस। आई थिंक द ट्रेंड इज फॉलोइंग बाय ए, है ना? आप अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक दफा प्लीज देख लें, हम यहां से देख लेते हैं, चलें, अगर आप लोगों को नहीं समझ। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात हो रही है ना? यू कैन सी सोडियम रिएक्ट विद हाफ O2। यहाँ हाफ क्यों लगाया मैंने? हाँ, बैलेंस है ना? नहीं, पहली बैलेंस थी, ठीक है, सही है। हाफ ऑक्सीजन, 1 मोल तो इससे भी कम के साथ रिएक्ट करेगा ना? सही है। और कौन था दूसरा? एल्युमिनियम 3/2, यानी 3/2 के भी हाफ के साथ रिएक्ट करेगा। और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 1 मोल के साथ। 3/2 का हाफ कितना होगा? हाँ, यहाँ हाफ आएगा। अब बताइए, ये तीनों इक्वेशन आपके पास हैं। देखें, 2 मोल सोडियम हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल सोडियम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1/4 के साथ। इन अ सिमिलर वे, 2 मोल्स एल्युमिनियम 3.5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल 1.5 के हाफ के साथ रिएक्ट करेगा, 3/4 के साथ रिएक्ट करेगा। और मैग्नीशियम हाफ के साथ रिएक्ट करेगा। अब मुझे बताओ, हाफ बड़ा है या 3/4 बड़ा नंबर है? हाँ, 1/1, तो इसका मतलब वही बड़ा हो जाएगा ना आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर मोर लेस ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बस इसका आंसर करें एंड देन बी डन विद दिस टुडेस क्लास। In 1999, researchers working in the US believed that they had made a new element and that is had the following electronic configuration. In which group of the periodic table that would be expected to find this element? Which group of the periodic table? Group 6? No. Group number is the total number of electron present in the outermost shell. Shell, yes. Outermost shell is beta this one. So 6 plus 2, how many electron? 8 electron का मतलब option D. चले, keeping it till here, group 2 and group 7 remaining.